आप सभी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चियाँ आपकी बेटी है ना, इनको आप कम मत आंकें, सिर्फ इन्हें दुल्हन के रूप में, बेटी के रूप में आप ना देखें। यह हमारे देश की बहुमूल्य संसाधन है और इनकी वैल्यू आप कम ना करें। समझ रहे हैं विवेक सर? और इनके मम्मी पापा से विशेष करके हमारी रिक्वेस्ट है कि यह बच्चियाँ सिर्फ बच्चियाँ नहीं हैं, इन्हें आप दहेज दे करके इनके वैल्यू को कम करते हैं, कीमत को कम करते हैं। हम जहाँ से देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस तरह हीरा की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, उस तरह एक सफल छात्र, ऐसे कहें तो एक अच्छा स्टूडेंट को एक टीचर ही पहचान सकता है। तो मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, जैसे कि ये सामने जो बच्चे दिख रहे हैं, ये सब आने वाले कल के करोड़पति हैं और अरबपति हैं। A very glorious morning to one and all. Welcome to the great special talk session and the class. So today's video we are not going to talk about spoken English, because you have seen lots of video with the related of spoken English guys. So I thought we should create video with all of them, because they all are preparing for government examination. So in this video we are going to understand a deep method and a complete method of success. So in this video we are going to challenge our mind, we are going to challenge our information, we are going to challenge our dedication. Actually in this video we are going to talk about parliament. Actually in this video we are going to talk about information, we are going to talk about its India company, we are going to talk about Pitt's India Act, we are going to talk about parliament, we are going to talk about coding decoding, we are going to talk about profit and loss, we are going to talk about percentage. So guys, with me you can see someone is standing right to me, someone is standing left to me. These all are the students, these all are the Spartans of CMC. They all are preparing for government examination, different examination. They all are preparing for like SSC, BPSC, any more. Lots of examination they are going to prepare. They are preparing for all these examination. So in this video, one day I thought we should create video with all of them. So now it's a good time. Actually it's a Monday today, so that's why I feel free. Then I should create video with all of them. So if you are college going student, school going student, and you are preparing for government examination, like you have dream to do something in your life, to transform yourself, so this video is going to really very beneficial to you all guys. So if you are college going student, housewife, any more, so you should watch this video till the end, because after the end of video you will get lots of information, lots of idea. So for all these curriculum activity, now I would like to call Mr. Binay sir. Please put your hand together. Mr. Binay sir. So I think sir, you should ask all these information like Pitt's India Act, like Act, profit and loss, percentage, all these questions I think you should ask. Whatever you have taught in your previous class, you should check all your students. So take it. ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हम हिंदी में बात करें। आप समझते हैं ना विवेक सर, थोड़ी सी इंग्लिश हमारी बहुत ठीक ठाक नहीं है, और अभी जो हम शब्द बोलने चल रहे हैं ना, ये शब्द मेरा नहीं, चुन्नू चाचा जी का है, जो बताते हैं। जो बच्चे आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि माना कि अंधेरा घना है पर एक चिराग जलाना कहाँ मना है। इसी को चरितार्थ करते हुए, ऐसे कहें तो इस धरातल पर उतारते हुए, हमारे सामने विवेक सर, ये जो बच्चे हैं, जो आपके जैसे कि आपने बताया कि राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में है, ये मामूली छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। ये वैसे बच्चे हैं, ऐसे कहें तो इन फ्यूचर कोई दरोगा के रूप में दिखेगा, कोई एसडीएम के रूप में दिखेगा, तो कोई बीडीओ के रूप में दिखेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है कि अरे विनय सर क्या बातें कर रहे हैं। तो कुछ मेरे मित्र तो ऐसे ज़रूर जानते होंगे कि जब 2014 में हमने कहा था कि मैट्रिक में हम यह करने वाले हैं, इंटर में यह करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस वक्त भी ऑकवर्ड लगा था। ठीक वैसे ही आज भी ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये मामूली बच्चे नहीं हैं। आने वाले भविष्य के
कोई एसआई दरोगा है, तो आने वाले कल के कोई एसडीएम वीडियो ये सब है। अच्छा, सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, ये अपने अनुभवी मित्रों से ये बताना भी चाहता हूँ, और इसका मतलब ऐसे कहें तो थोड़ा सा क्या कहें सर, इसका रिव्यू देना चाहता हूँ। क्या देखना चाहेंगे विवेक सर आप? जरूर सर। जैसे कि आपने बताया कि हम थोड़ा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर हमने क्या किया है और इन बच्चों ने क्या किया है। और एक बात और बता देना चाहेंगे, प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसे कहें तो सरस्वती हर उन लोगों की दासी है, महारानी नहीं, देवी नहीं मैं कह रहा हूँ, हर उन लोगों की दासी है जो दिन रात मेहनत करते हैं। और हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के डेट में यह बात कहना कि हमारी सफलता जगह की वजह से ना मिली, यह कहना बिल्कुल गलत है, जैसा कि आप इन बच्चों के माध्यम से देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कहाँ से चालू करें सर? पॉलिटी से स्टार्ट करें क्या? यस सर। पॉलिटी में आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान से। आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है। बच्चे, यदि मैं पूछूं कि देश में सर्वोच्च स्थान सबसे शीर्ष पर क्या है हमारे देश में? हम चाहेंगे थोड़ा सा बोल्डली आप सब बोलेंगे, और आप सभी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चियाँ आपकी बेटी है ना, इनको आप कम मत आंकें, सिर्फ इन्हें दुल्हन के रूप में, बेटी के रूप में आप ना देखें। यह हमारे देश की बहुमूल्य संसाधन है और इनकी वैल्यू आप कम ना करें। समझ रहे हैं विवेक सर? और इनके मम्मी पापा से विशेष करके हमारी रिक्वेस्ट है कि यह बच्चियाँ सिर्फ बच्चियाँ नहीं हैं, इन्हें आप दहेज दे करके इनके वैल्यू को कम करते हैं, कीमत को कम करते हैं। हम जहाँ से देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस तरह हीरा की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, उस तरह एक सफल छात्र, ऐसे कहें तो एक अच्छा स्टूडेंट को एक टीचर ही पहचान सकता है। तो मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, जैसे कि ये सामने जो बच्चे दिख रहे हैं, ये सब आने वाले कल के करोड़पति हैं और अरबपति हैं। इनको आप थोड़ा सा समय दे करके देख लीजिए या क्या करने वाले हैं। तो हम जानना चाहते हैं, देश में सर्वोच्च स्थान क्या है बच्चे? संविधान का। हम ये सामने जो अंजलि दिख रही हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, संविधान को यदि अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो क्या बताएंगी संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? हम सभी को ये अपने लाइफ में स्कूल में पढ़े होते हैं। तो जिस तरह एक विद्यालय को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता होती है ताकि उस विद्यालय को नियमित ढंग से चलाया जा सके, उसमें कोई दिक्कतें ना आए, उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं और उसी नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। वेरी गुड। जैसे कि विवेक सर आप देख रहे हैं, यह रटा हुआ कोई परिभाषा नहीं है, ये अपने सोच से उत्पन्न परिभाषा है। यानी देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिस बुक का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, उसी का नाम संविधान है। चलिए, हम जानते हैं कि संविधान बनाने की शुरुआत, ऐसा एक चैप्टर है सर, संवैधानिक विकास का क्रम, जो कि स्टार्ट होता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। अच्छा, यह क्लिप हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं ना कि यदि आप बाहर रह करके पढ़ रहे हैं ना, तो इन गांव के भी बच्चों को आप एक बार देखें कि गांव वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि संवैधानिक विकास के क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट से आप लोग परिचित है कि नहीं? बच्चे, आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं क्या? जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट? थोड़ा सा बोल्ड बोलना है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, या मुझे बताएंगे क्या? बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, हम अंजलि से नहीं, हम बीना से जानना चाहेंगे इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा? इंग्लैंड से एक कंपनी आई थी इंडिया में, वो अपने कुछ व्यापार करने के लिए, और वो यहाँ पर आकर वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ अपने अनुसार यहाँ पे नियम कानून चलाने लगी, जो वहाँ के सरकार को एक्सेप्ट नहीं था। उसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो ये एक्ट चलाया गया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। चलिए, वेरी गुड। हम जानना चाहेंगे अंजलि से कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? सर, इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इस एक्ट का उद्देश्य बेसिकली यही था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह कंपनी पर अपने नियमित नियंत्रण स्थापित कर सके, और यदि नियमित को इंग्लिश में देखें तो उसको रेगुलेटिंग कहा जाता है, इस कारण इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। चलिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे
अच्छा, उसके बाद सर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? वीडियो बहुत लंबा ना हो, हम थोड़ा सा में मतलब एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में। हाँ, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि अभी हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जो बात मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, इसे हम लोग धरातल पर पूरा कर दिखाएंगे। हम चाहेंगे, अच्छा ऐसे सभी बच्चों से कुछ पूछें क्या सर? चलिए तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें क्या? चलिए, तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव तो सभी बच्चे याद करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ बच्चे इन फ्यूचर SDM हैं, BDO हैं, दरोगा हैं, पुलिस हैं, ये सब हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अंजलि बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ये पिट्स इंडिया जो एक्ट है वह एक संवैधानिक, हमारे देश के संवैधानिक विकास का यह क्रम है, यह एक प्रक्रिया का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसे पिट्स के नाम से ही क्यों जाने जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो चीज़ बनता है, किसी भी चीज़ का नाम रखा जाता है, बेसिकली उसका कुछ रीजन्स रहता है, कुछ कारण रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसका नाम पिट्स ही क्यों है। तो दरअसल जो ये एक्ट है वह एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विलियम पिट, उन्हीं के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था, जिस कारण इसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। विलियम पिट सन 1780 में इंग्लैंड के सांसद बने और उसके जस्ट 3 साल बाद अर्थात सन 1783 में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटरी एक्ट में हुई कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य गवर्नर जनरल के अधिकारों को स्पष्ट करना एवं भारत में प्रशासनिक सुधार करना था तथा इसी के साथ कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण और भी मजबूत करना था। सन 1773 ईस्वी से ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी जो कंपनी का नियंत्रण था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों और उसके व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में कुछ प्रावधान भी रखे गए। कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ाने हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इन 6 सदस्यों में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का सचिव, दूसरा एक शेकर और 4 प्रिवी काउंसलर हुआ करते थे। और यह प्रावधान बनाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी सदस्य होंगे उनका जो वेतन है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और इसी के साथ ही मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए भी 3 सदस्यीय काउंसिलिंग की व्यवस्था की गई। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार की सहायता से करेगा। इस एक्ट के द्वारा ही प्रावधान बनाया गया। इसके अलावा जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल होंगे उनको वापस बुलाने के अधिकार भी ब्रिटिश क्राउन को ही दिया गया। इसके दौरान ये भी नियम बनाया गया कि कोई भी जो कंपनी है वह इंग्लैंड की सरकार के बिना किसी भी भारतीय राज्य संधि या फिर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित किया गया और इसी एक्ट के दौरान कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, जो कंपनी ने हमारे देश के जिन भागों पे अपना नियंत्रण स्थापित किया गया था, उन सारे क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। परंतु यह एक्ट भी विफल रहा और इसके कुछ रीजन्स थे जिस कारण ये जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो विफल रहा। तो सबसे पहले इसके कारण ये था कि जो कंपनी, यह जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको विफल इसलिए माना गया क्योंकि कंपनी की शक्ति और सरकार के अधिकारों की बीच कोई अस्पष्टता नहीं थी, उनके बीच कोई सीमा नहीं थी, जिस कारण अंजलि हम थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे अनुभवी मित्र जरूर यह जज करेंगे कि हम लोग किस पहलू पर काम कर रहे हैं। चलिए सर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, हम शॉर्ट बात करते हैं, कुछ करें क्या? हम चाहेंगे कि अंजलि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम रख रही थी। हम जानना चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, राजरानी बताएंगी। कंपनियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है। अच्छा, यानी यह बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम मतलब कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करना था, इसी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर चुने जाते थे वह किस आधार पर चुने जाते थे? संसद के आधार पर नहीं, कि कोई बताएगा क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर चुने जाते थे वह किस आधार पर चुने जाते थे? कोई बताएगा क्या?
थोड़ा बोल्ड बताना है। जो उसमें पूंजी खर्च करेगा, यानी जो शेयर धारक होते थे कंपनी में वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में चुने जाते थे। ओके, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में आप बताएंगे क्या? इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों रखा गया? पार्लियामेंट सुधार 1909 के तहत आया गया था और कोई बात नहीं है। अब आइए सर, हम थोड़ा सा मैथ में पूछें क्या? जैसा कि इन लोगों के पास पीडीएफ है, यह पीडीएफ के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे अभी कोडिंग डिकोडिंग का है, और जानते हैं सर, यह दिल्ली के एक सर हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे अनुभवी मित्र जानते होंगे, कैरियर व्हील ऐप पर पढ़ाते हैं। इस सर का नाम है अरुण सर। तो बच्चे जो दिल्ली में जा कर के जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ वही पढ़ाई सीएमसी में हो रहा है। और सिर्फ हो ही नहीं रहा है, ये आप हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग बच्चे पढ़े, इसमें आप जानते हैं कि करेक्ट पोजीशन, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि अल्फ़ाबेट का करेक्ट पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे कैसे याद किए हैं, हम जानना चाहेंगे। बच्चे 10 पर यानी 10 पर ABCD का कौन सा लेटर आता है? थोड़ा अच्छा, 13 पर क्या आता है? M। N का स्थान क्या है? अच्छा, हम जानना चाहेंगे P का स्थान क्या है? 16। अच्छा, K का हम उल्टा जानना चाहेंगे कि K का ऑपोजिट लेटर कौन सा है? अच्छा, S का ऑपोजिट क्या होता है? H। तो देख रहे हैं विवेक सर, अब थोड़ा सा मैथ में हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा मैथ हमें दिखाइए, किसी के पास है क्या पीडीएफ? जैसे कि ये देख रहे हैं सर, ये मशहूर सर हैं, इनका नाम राकेश यादव सर है। और हमको लगता है जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में उतरते हैं, वो राकेश सर को ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत शानदार लाजवाब टीचर हैं, और इससे हमारे यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका यह पीडीएफ प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज को चेक करते हैं कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। हम संगीता कुमारी से सबसे लास्ट में सर जानना चाहेंगे क्या है आप? हम थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू जानना चाहेंगे। आप बताएंगे क्या 4/7 की वैल्यू कितनी? 57.1/7%। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33.1/3%। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14.2/7%। 1/3 की वैल्यू बताएंगे क्या? 33.1/3। 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 20%। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14.2/7। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 12.1/2%। तो सर आप यह गेस कर सकते हैं। और सर आप ही नहीं, जितने भी अनुभवी मित्र हैं ना, जो अच्छा एक बात जानते हैं, ये लड़कियां हैं जिनको एक होता है ना कि अपना पैमाना ना पता हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमने कहें या कहें तो पूरे सीएमसी टीम हम लोग इन लोग को एक पंख दे रहे हैं। और ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जो मैट्रिक इंटर कर करके अपने घर पर निराश बैठी हैं, उनका कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप हमसे जुड़िए, हम एक आपको नया पंख देंगे उड़ने के लिए। और देखिए अभिभावक को एक बात और बताते हैं, इन बच्चियों से हम फ़ी नहीं लेते हैं। अब फ़ी का ये कि हमारी शर्त बनी है। हम जानना चाहेंगे, किन से जानना चाहेंगे? बीना से जानना चाहेंगे हमारी फ़ी की क्या शर्त बनी है, थोड़ा बताएंगी आप? ये जो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास करते हैं, इसका सर कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि हमें यहाँ 3 साल अपना टाइम देना है। हम फ़ी कैसे लेंगे? देखिए हम फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, हम फ्री में, हमारी संस्था कुछ नहीं देती है। हाँ, आपके बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। अच्छा, थोड़ी सी लड़कियां जो है ना, ये कैमरा पर आकर के ऑन कैमरा थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही हैं, लेकिन एक प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। जस्ट अगले सोमवार को आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे अंजलि इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम फ़ी कैसे लेंगे। जैसे कि दीदी ने बताया, बिना दीदी ने, कि वो बेसिकली कोई फ़ी नहीं लेंगे। ये वह वो डायरेक्ट रूप से नहीं, अपितु वो इनडायरेक्ट रूप से लेंगे। तो उनका जो फ़ी है वह कुछ यूनिक तरीक़ा से है। उनका कहना है कि आप 3 साल तक पढ़िए, लगातार पढ़िए, इसमें मैं अपना कोई फ़ी नहीं लूँगा। लेकिन यदि आप इन 3 सालों के अंदर या फिर 3 साल के बाद कुछ बनते हैं, तो आप उसमें जितना भी कमाएंगे या आपकी जितनी भी सैलरी होगी, आप 2 महीने की जो सैलरी है वो सर को दे देंगे। चाहे वो यदि सैलरी आपकी 2 रुपया होती है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 रुपया देना है, या फिर आपकी सैलरी यदि 2 लाख होती है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख देना है। तो सर की यही रणनीति है इस बैच को लेकर। चलिए थोड़ा सा जो मुझे देख रहे हैं हम बता देना चाहेंगे। देखिए हम वेट करते हैं, पेशेंस बहुत रखे हैं हम, और आगे भी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक प्राइवेट टीचर हैं। और मुझे यह कहने और बताने में बिल्कुल शर्माहट नहीं होती है कि क्या कहें सर, थोड़ा सा इंग्लिश बोलें तो हम कहेंगे आई एम प्राइवेट टीचर, और यह कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती है, और यह रहना चाहते हैं।
और ये अंजलि जो बताई फिर से बताना चाहेंगे कि हम लड़कियों की फ़ी अपने यहाँ नहीं लेते हैं। अगर लड़की हमारे यहाँ ग्रेजुएट है, इंटर है, तो उन्हें 3 साल हम पढ़ाएंगे। हाँ, उसमें वह सारे जगह का, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर का, राजस्थान का, पटना का जो बेस्ट फैकल्टी हैं, उन सारे सिस्टम को हम अपने यहाँ उतारने की कोशिश करेंगे और उससे उनकी पढ़ाई करवाएंगे। बच्चे और बच्चियाँ जब सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे कहें तो पेन के थ्रू जब यह रुपया कमाना स्टार्ट करेंगे तो हम 2 महीना की फ़ी लेंगे। मतलब 2 महीना की जो इनकी सैलरी होगी, अगर 10 रुपया होती है, आप जानते हैं 10 रुपया तो होती ही नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 10 रुपया मंथली नहीं है। तो जितनी भी हो, अगर 30,000 होती है तो हम 60,000 रुपये लेंगे। लाख रुपया की होती है, जैसे हमने SDM बनाने का सपना देखा है, और जो अनुभवी होंगे ना, ये ज़रूर समझ आएंगे कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और आ गया कि हाँ, हंसने वाले तो सर कभी कहेंगे, कभी कमेंट उड़ाएंगे, लेकिन मुझे अभिमान है अपने बच्चों पर, अभिमान है अपने प्यारे बच्चों एवं बच्चियों पर कि आज हम लोग 475 मैट्रिक में नंबर लाए हैं ना, उसी तरह से एक दिन इसी संस्थान से हम लोग SSC ही नहीं, रेलवे, बैंकिंग, इस सब पर काम करेंगे, क्योंकि हमने यह 2014 का सपना देखा है और इसे हम लोग अब पूरा करने चल रहे हैं। तो हमें आशा है कि आप सब बुद्धिमान हैं, ज़रूर इस बात को समझेंगे। बच्चे, आप जिस लगन से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग फिर सोमवार को आकर के अगला रिव्यू देते हैं। ओके, धन्यवाद।